ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਚ ਪੜਚੋਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ? ਜੋ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਣੂ ਤੱਕ, ਪਰਮਾਣੂ ਤੱਕ। ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਰਾ ਆਲਸ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਚ ਅੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਸੇਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਕਹਿ ਦੋ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੋ, ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਰਸਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ 8-10 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਰੰਗ।
कहने लगे एक दरख्त ਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 150 ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, 150 ਢੰਗ ਦਾ ਹਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹਰਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਹਿਨੀ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੋੜਦਿਆਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਸੁਣ ਕੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰਮਾਣੂ ਤੱਕ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵਾਸਾ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਂ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਰਾਂ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ। ਗੌਤਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭਗਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੌਧ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ, ਬੇਵਾ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, 3-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਜੇ ਬਿਕਸ਼ੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਦ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਵਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਸਰੇ ਤੇ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
समझ तो मनुख थल्ले चला जाता है। उसकी समझ दे च भी कुछ नहीं आ रहा सी। दुख का इतना अंधेरा, दुख का इतना अंधकार, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सी। ज़ारो ज़ार रो रही सी, बस रोण तो बिना होर कुछ भी नहीं सी। तो तरस आया किसी नूं उसकी हालत ते जा। तो पिंड दे च आए हुए ने, सवेरे शाम वो परमात्मा की गल करते हैं। तू रोना ही है, चीखना ही है, उत्थे चीख। कहते ने यह गल सुन के बजी उस थां ते जिथे महात्मा बुद्ध सन, बच्चे नूं अगे रख के रोंदी हुई ते गई। रोना होर वध गया और इको ही सुर नाल आखी जाए, तुसी मेरा सहारा हो, इसनूं जवाओ। मैं इस तो बिना नहीं जी सकती, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई आसरा नहीं। कहते ने बहुत सुखियारे ते बहुत दुखियारे दे उत्ते ज्ञान का भी असर नहीं आता, कतई नहीं आता। ऐसी हालत महाभारत के समय भी हुई सी। चक्रव्यूह दे च फस के जब धोखे नाल अभिमन्यु नूं मार दिता गया, लाश चुक के अर्जन कृष्ण दे कोल ले गया। आखे इसनूं जवाओ, इस तो बिना मैं नहीं जी सकता। अर्जन दा लड़का, मैं नहीं जी सकता। ये मेरा बच्चा बहुत सियाणा, ये मेरी जिंदगी का सहारा सी, ये मेरा भविष्य सी। मेरा तो सब कुछ अंधेरा हो गया, इसनूं जिवाओ। कृष्ण ने सोचा इतना दुखी ज्ञान तो प्रभावित नहीं होने लगा। दुखी हिरदा ज्ञान तो प्रभावित नहीं होता, सुखी हिरदा ज्ञान तो प्रभावित नहीं होता। मद की अवस्था चाहिए। जिवें सितार दियां तारां नूं बहुत कस देईए, इतनी उच्चियां हो जाएगी, सुर गाना औखा हो जाएगा। बिल्कुल ढिलियां कर दईए, नगमा निकलेगा नहीं, संगीत निकलेगा नहीं। तारां बहुत कसियां हुई ना होन, बहुत ढिलियां भी ना होन। जीवन दियां तारां किसे दियां ते बहुत कसियां हुई ने, बहुत कसियां हुई। इतने सुखियारे ते सुख ने इतना बेहोश किया है। हुण प्रभु दा संगीत निकल सके, औखी खेड हो गई। ते किसे दियां तारां बिल्कुल ढिलियां ने, बिल्कुल ढिलियां। जीवन का कोई साजो समान नहीं। दुख नगमा हीण कर दिता है किसे नूं दुख ने, संगीत हीण कर दिता है किसे नूं सुख ने। जीवन दी रवाब नहीं वजदी किसे दी सुख करके, किसे दी दुख करके। किसे दियां तारां बहुत कसियां, किसे दियां बहुत ढिलियां। कृष्ण ने देखा ये ज्ञान की गल ते समझण वाला नहीं, भाव सुनेगा नहीं। जो मैं कहांगा ये सुनन लई राजी नहीं होगा, नहीं होगा। और ये भी मैं अर्ज करा, जो दुख लेके इत्थे आ गए अपना, कम से कम होर ते सारियां नूं सुन लेगा, गुरु नूं नहीं सुन सकता। ते जो सुखां दी भावना लेके आ गया या सुख ही लेके आ गया, मुश्किल है गुरु नूं सुन सके, नहीं सुन सकेगा। मद दी अवस्था चाहिए, दरम्यानी अवस्था चाहिए। कृष्ण दे हाथ दे एक सोने का करमंडल सी दिता, अर्जन नूं आख्या सामने सरोवर तो भर लिया। देखते हैं ना उम्मीदी दे एक उम्मीद दी किरण दिखाई दिती, अंधेरे दे थोड़ी रोशनी दिखाई दिती। ये पानी मंगाया है, शायद कोई मंत्र पढ़नगे, शायद अभिमन्यु नूं जिंदा कर देणगे। भजिया होया गया,
ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕਰਮੰਡਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਭਗਵਨ ਜਿਵਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। हैरान होया, हुणे आखिया ने भर के लियाओ, हुण कहंदे ने उत्थे ही डोल के आओ जिथों भर के लियांदा है। पर इतना दुखियारा बंदा और उस दुख दे जो माड़ी जियां उसनूं किरण दिखाई दिती है, उस करके उस दे अंदर फुरती सी, एकदम करमंडल चुकिया, भज पिया, डोल आया, पानी डोल आया, अगों रखिया करमंडल, आखिया भगवान हुण अभिमन्यु नूं जिंदा करो। करदे आ, पर इंज कर, जिहड़ा पानी तू डोल के आया ना उही कढ लिया, उही कढ लिया। जिहड़ा पानी तू डोल के आया ना सरोवर दे च उही कढ के आ, दूसरा नहीं चाहिए मैनू। अर्जुन कहने लगा मेरे नाल मजाक, ऐसे समय वो पानी मैं किस तरह कढ़ के लिया सकता। वो तो सरोवर दे लीन हो गया। कृष्ण कहते ने मैं तेरे नाल मजाक नहीं कर रहा, तू कर रहा। छोटे जिहा सरोवर दे करमंडल दा पानी तू डोल के आया, उही पानी तू कढ़ के नहीं लिया सकता। परमात्मा एक विशाल सागर, अभिमन्यु दी आत्मा एक निक्की जही बूंद, वो निक्की जही बूंद जिहड़ी उस विशाल सागर दे लीन हो गई है, मैं कित्थों कढ़ के लियावां, किस तरह कढ़ के लियावां। चरना ते झुक गया, कहंदा भगवान समझ पै गई, समझ पै गई। कृष्ण कहंदे समझ नहीं पई, दुख दा पड़दा हट गया, दुख दा पड़दा हट गया। मैं फिर अर्ज करा, कृष्ण कहंदा मैं, अर्जुन कहंदे मैनू समझ पै गई, पता चल गया, समझ पै गए। नहीं, तेनू बोध प्राप्त नहीं होया, पड़दा हट गया। केड़ा दुख दा, उहदे हटदियां ही तेनू कुछ दिखाई दिती है असलीयत। दुख एक ऐसा पड़दा है, कुछ भी नहीं दिखाई देंदा, अखां नूं अंधा कर देंदा है। और सुख भी एक ऐसा पड़दा है, अंधा कर देंदा है, कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया, दुख करके कोई अंधा होवे जगत दे च बहुत थोड़े ने, सुख करके अंधियां नाल ते सारा संसार भरिया पिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अगर उजड़े ने बहुते, तो दुनिया दे पहले नालों बैरूनी सुख वधिया, इस करके उजड़े ने। यह भी मैं अर्ज करा, जे स्रोत घट गई है परमात्मा दी, तो सुख करके घटी है। मुख्तसर में अर्ज करा, वो गौतमी, वो यही रोना, यही रोना जो अर्जुन ने कृष्ण दे अगों रखिया सी, गौतमी ने बुद्ध दे अगों रखिया। यही मेरा बच्चा जिंदगी का सहारा है, मेरे जीवन का सहारा है, मैं इस तो बिना नहीं जी सकती। रोई जाए, रोई जाए, रोई जाए। महात्मा बुद्ध कहते ने गौतमी, एक काम जे तू कर सके तेरे बच्चे नूं जिवा देंदे आ, जिवा देंदे आ। एक काम कर, एक मुठ चावलों की उस घरों मंग के लिया जिस घर दे कदी कोई अर्थी ना उठी हो, मंग के लिया, मैं तेरे बच्चे नूं जिवा देंगा। दुखां दी मारी उन्होंने समझते आई ना, भज पई, कहंदी हुणे लियाई, हुणे लियाई। पहले बूए ते दस्तक दिती, रोंदी हुई नूं देख के घर वालियां नूं पहले ही तरस सी। बुद्ध ने यह आख्या, एक चावल दी मुठ उस घरों मंग के लिया जिथों कोई अर्थी ना उठी हो,
घर वाला कहन लगा इत्थों तो मेरे प्यो की अर्थी उठी सी, मैं अपने कंधियां ते लै गया सी, मेरी मां की अर्थी उठी सी, और मैनू होश है मेरी दादी की अर्थी उठी सी। इस तरह पता नहीं कितने की अर्थी उठी होगी। चावल ले जाने ने ते भावें मणा के हिसाब नाल लै जा, साडे कोल बहुत ने, पर यह जिहड़ी शर्त है अर्थी ना उठी होवे, अर्थी ते उठियां ने। दूजे घर च गई, थोड़े घर तो कोई अर्थी ना उठी होवे, मैनू एक मुठ चावलों दी दिओ। दूजे घर वाले भी कहते हैं जितने ले जाने ले जा, कोई चावलों की कमी नहीं, अर्थियां ते उठियां ने। तीसरे च गई, चौथे च गई, इतिहास कहता है पंजवें च गई तो दुख का पड़दा हट गया। कहता है हर घर चो अर्थी उठी है। ये हर घर घर नहीं है, ये सब मुसाफिर खाने ने, 4 दिन लई लोकी बैठे ने, ये कोई घर थोड़ी है। जिसनों असी घर कहते हैं, घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। गौतमी आई बदल के महात्मा बुद्ध दे कोल। महात्मा बुद्ध कहते ले आई चावल? हाँ ले आई हाँ। किथे? इस बच्चे की जिंदगी नहीं चाहिए, मैं भिक्षु हो गई, आज तो मैं भिक्षु हो गई, मैनू समझ आ गई, मैनू पता चल गया। दरअसल जिसनों असी घर कहते हैं, घर नहीं है। उस घर दे च मनुख की सुरत जा सकती है शब्द के आसरे ते, और तां जे सुने। जो सुन नहीं सकता संत नहीं बन सकता, और जो वेख नहीं सकता साइंटिस्ट नहीं बन सकता, विज्ञानिक नहीं बन सकता। वेखण की क्षमता चाहिए, वेखण की शक्ति चाहिए, वेखण की ताकत चाहिए, वेखण की बारीकी चाहिए। जैसे मैं अर्ज की थी सी, मैं उस चित्रकार नूं देख के हैरान होया, इतने रंग हैगे ते सारे हरे ही सन उस कोल। और मैनू पहली दफा पता चला हजारां तरह की हरियावल आउंदी, एक तरह की नहीं। पर एक चित्रकार नूं पता चलता, उसकी दृष्टि बड़ी पैनी है। एक संगीतकार नूं फौरन पता चल जाता है, ये मनुख इत्थों बेसुरा हो गया है, इत्थों बेताला हो गया है, ताल चो निकल गया है, सुर तो निकल गया है। आम मनुख नूं कुछ भी नहीं पता चलता। जिन्हां नूं असी महान रागी कहते हैं, महान रागी, चोटी दे संगीतकारां ने मैनू यही आख्या सब बेसुर है, बेसुर है और बेताल है। जद मैं उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं ये तो सिख जगत च बड़ी गल है इन्हां दी। कहंदे होवेगी, वो बाणी दा प्रताप है, वो बाणी दा असर है। संगीत दी इन्हां नूं कुछ समझ नहीं, कुछ भी पता नहीं, ना ये सुर दे च रहिंदे, ना ये ताल दे च रहिंदे। ऐसा मैं चोटी दे संगीतकार जो सुर दा बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत सूझबूझ रखते हैं, और बेसुरे हो जाना जिसनों मौत समझते हैं, बेताले हो जाना जिसनों मौत समझते हैं। इस तरह का गायक किधरे बेसुरा हो जाए, ऐसा समझता है जिमें मेरी जिंदगी च कुछ खत्म हो गया है। किधरे बेताला हो जाए, वो इतना दुखी होता है, शायद कोई बड़े तो बड़ा मातम मनाने वाला भी इतना दुखी नहीं हो सकता। आम मनुख नूं कुछ नहीं पता चलता। और मैं हैरान होया, सारा सिख जगत ते कही जाता है महान रागी, महान रागी, ये कहते पैन बेसुरे ने, बेताले ने, ये सुर दे च नहीं ने। समझ, स्रोत इतनी बारीक समझ है, दृष्ट इतनी बारीक। असी ते कहते हैं ये दरख्त हरा है,
पर एक चित्रकार ने कह देना है इक्को तरह की हरियावली नहीं, हजारां तरह का हरा रंग ਲਈ बैठा है। शायद एक एक पत्ते का रंग अलग है, एक एक पत्ते की हरियावली अलग है। दृष्टि दृष्टि बारीक होवे और फिर पदार्थ ਨੂੰ तोड़दा जाए, फरोलदा जाए। फरोलना कह दो भावे तोड़ना कह दो, फूलदा जाए, फूलदा जाए, खोलदा जाए, आखिर किथे पहुंचेगा? परमाणु ते, अणु ते। इस तो अगे विज्ञान नहीं जा सकिया। भारत देश एक मैगजीन निकलता, उसका नाम है दिनमान। हर महीने जो साइंस की कोई नवी खोज होवे उसदे छपदी है। ते रुचि के मुताबिक मैनू पढ़न का शौक है। सफर जद होंदा मैं भी शायद कोई नवी खोज, शायद किसी साइंटिस्ट की कोई नवी देन, शायद किसी विज्ञानक हद कोई नवी गल आई होवे। जो कुछ भी आउंदा है, जो खोज चुके ने अज तक, उसे च ही सुधार हो रहा है। परमाणु तो अगे नहीं जा सके। शायद ऐलानिया एक दिन सारे साइंटिस्ट कह दें परमाणु तो अगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐलानिया तौर पर सारे संतां ने कह दिता है परमात्मा तो अगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक तोड़ दिया परमाणु तक पहुंचे है, एक जोड़ दिया परमात्मा तक पहुंचे है। दो ही ढंग ने। अखां कोई नहीं परमाणु तक नहीं पहुंच सकेगा, कान कोई नहीं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेगा। देखना नहीं है तो अणु ਨੂੰ नहीं देख सकेगा, परमाणु ਨੂੰ नहीं देख सकेगा। और मैं अर्ज करा सुनना ही नहीं है, परमात्मा ਨੂੰ नहीं देख सकेगा। परमात्मा का दर्शन पहले सरवन दर्शन है। जो सुन नहीं सकता वह वेख भी नहीं सकता। उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते ने श्रुतवा धर्मं विजानाति, भी सुनन नाल ही धर्म की प्राप्ति होंदी। धर्म का सारा ज्ञान सुनन ते खड़ा है। असी मनुख नूं पहले वेखदे हां ते फिर उस नाल गलबात करदे हां। ये थोड़ी है कि पहले गलबात करते हैं तो फिर वो दिखाई देवे, इस तरह नहीं। पहले सामने खड़ा है, देखते हैं, फिर उस नाल गलबात करते हैं। परमात्मा बारे ये गल नहीं, पहले बोल ते सुन फिर दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा। इसनों फिर विज्ञानक बुद्ध दे लोग इंज कहते ने ते हवा दे तीर चलाना है, इतने अंधेरे दे तीर चलाने। दिखाई भी कुछ ना देवे फिर बोलिए, दिखाई भी कुछ ना देवे ते सुनिए। और सुनिए कि एक कोई शब्द आपकी ज्ञात लई अर्ज करा। आम दरम्याना तबका प्रतिभाशाली जड़े मनुख ने ना, प्रतिभाशाली किसी भी पक्ष दे अगे चले गए ने। गीत दे, संगीत दे, कला दे, विज्ञान दे, किसी भी पक्ष दे अगे चले गए ने। कहते ने पागल ने इको ही गल च उलझे रहंदे ने, इको ही गल च। मैं अपनी जिंदगी च ज्ञान सिंह अलमस्त नूं देखिया, जो ठुमरी गांदा सी, ध्रुपद गाउंदा सी। उस वर्गा मेरी जिंदगी विच, मेरी दृष्टि च उस तरह का गायक नहीं सी कोई। एक ते तखल्लुस उसने अपना अलमस्त रखिया, एक उंज रहिंदा भी अलमस्त जिहा सी। बहुत सारे रागी सिंगां ने उसनूं सुनिया। मैनूं ते 2-4 साल मंजी साहब भी सुनन नूं मिलिया, जिथे दास एक महीना कथा करता है हर साल अक्तूबर का महीना, उथे भी। और ऐसा एक दिन खो गया। 8 बजे दास ने कथा शुरू करनी सी और 9 बजे तक ही ध्रुपद जो गायकी उसने शुरू की थी उसे च ही रहा, उसे च ही रहा।
कईयां ने सोचा ये पागल कित्थों बिठा दिता, 9 ते वज गए और मैं ही रोकदा रहा। जेड़े उन्होंने रोकण वाले सन उन्होंने मैं ही रोकदा रहा। मैं ना कुछ आखो, किसी नूं समाधि कहने और की है, यही समाधि है, यही लीन हो जाना है। संगीत दियां गहराइयां च ऐसा लीन हो जाता सी, जे किसी दे घर गया चाह पीण ते प्याले खड़काण लग पैंदा सी, जे खाने की टेबल ते बैठा है तो बांडे खड़काण लग पैंदा सी चम्मच नाल। हर वक्त सुरताल दी दुनिया च रहना। सहजे सहजे ये होया, बथेरियां दी जबान चो निकलिया पागल है, पागल है। पिछले दिनी उसकी दोती मैनू एटलांटा मिली। पुरानियां यादां कुछ ताजियां हो गई, इस वास्ते मैं अर्ज पिया करता। लोग पागल कहने लग पे। दरम्याने तबके दे मनुख ऐसे लोगों ने, चोटी दे विग्यानक जिहड़े होए ने, उन्होंने भी पागल आख्या, उन्होंने पत्नियां ने भी पागल कह दिता। ये तो इको ही गल च उलझे रहंदे ने, इको ही गल च उलझे रहंदे ने। चोटी दे संगीतकार कवि महाकवि बरकत नूं मैं देखिया सी, और उहदे नौजवान लड़के की जबान तो भी मैं लफ्ज सुने सन, पापा पागल है। मैं तो इत्थे तक सुनी उसदे कोल गल दिल्ली दे च, ये पागल है। गुफ्तगू करदियां घंटा हो गया सी, असीं आपस च बैठे, पर कुछ गल उन्होंने ऐसी छेड़ी उन्होंने कोल मुकदी नहीं पई सी। और पहली दफा मैं सुनिया, भावें बुजुर्ग हो गए सन, ये पागल है। तो मैं कहूं कौन दसे, अगर ये पागल है तो फिर दुनिया च कोई सियाणा नहीं है, कोई सियाणा नहीं है। इको ही गल दे च उलझे रहना, चाहे गीत है, चाहे संगीत है, चाहे विज्ञान की कोई झलक है, उसे च उलझे रहना। आम दरम्याने लोग ऐसे बंदियां नूं कह देंदे जो प्रतिभाशाली होंदे ने पागल, और जो परमात्मा दे च उलझ के रह गए संसार ने कह दिता है महापागल ने, महापागल ने। यह भी मैं अर्ज कर लिया, किसी एक चीज दे च उलझे रह गए। कोई इको ही हर वक्त दिखाई दे रहा है, और वो है परमात्मा, चाहे कुछ भी है। दो ही तरीके दियां खोजां ने, एक कन ते खड़ी है, एक अख ते खड़ी है, इंज कह लो। बाकी इंद्रियां दी भी अपनी महानता है, पर इन्हां दोहां दी ते बहुत ज्यादा महानता है। या मैं इंज कह दियां, जो अंधा है साइंटिस्ट नहीं हो सकता, जो गूंगा बहरा है संत नहीं हो सकता। अक्सर बहरा गूंगा होंदा है, अक्सर गूंगा बहरा होंदा है, नहीं सुन सकता। कदी कदाई किसी को देखण दी ऐसी क्षमता होंदी है। पहली दफा जद गलेलियो ने यह आख्या जमीन ते गोल है, चपटी नहीं, ये ते घूम रही है, रुकी हुई नहीं। तैनू किस तरह पता चलिया? मैनू दिखाई देंदा है, मैं देखिया, मेरी दृष्टि। तेरे बोल बाइबल तो उल्ट ने, पर गलेलियो कहंदा मेरे बोल सच नाल जुड़े हुए ने। तू बाइबल दे खिलाफ बोल रहे हैं। गलेलियो कहंदा की करा, बाइबल मेरे खिलाफ खड़ी है, मैं की करा। मैं जो कुछ कह रहा सच कह रहा। उस वक्त ते विचारे नूं तरह तरह के तसईये दिते गए, जिन्होंने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता होगा। अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन गोल है, अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन रुकी हुई नहीं, घूम रही है। पर जदों उसने आख्या सी, लोगों ने पागल आख्या सी।
धन गुरु नानक देव जी महाराज सृष्टि रचना बारे एक अगम्य लीला बयान कर देन किसी वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। एक मनुख अपने कोल बहुत गहरी दृष्टि रखता है। धरती सूरज चंद तारियां दी कुछ असलियत उसनों दिखाई दे जाती है। ग्रह नक्षत्रां दी बनस्पति दी बयान करता है, आम लोगों को नहीं दिखाई देती। या मैं इंज कवां औसत जितने विज्ञानक होंदे ने जमीन दे ते बस उतने ही संत होंदे ने, उस तो ज्यादा नहीं होंदे, इस तो ज्यादा नहीं होंदे। न विज्ञानक ज्यादा ने न ब्रह्म ज्ञानी ज्यादा ने, थोड़े ही ने, बहुत थोड़े ने। एक कोल इतनी गहरी दृष्टि है, पदार्थ नूं फोलदियां परमाणु तक पहुंचे है। और एक कोल ऐसी गहरी स्रोत है, ऐसा गहरा सुनना है, सुनदियां परमात्मा तक पहुंच गया। सुनना ही काफी है। अगर गुरु नानक ते कोई बोल नो सुने तो सुन के ही शब्द ने अंदर प्रवेश करना है ना। जैसे हलक तो थल्ले करांगे बुरकी ताई खून बनेगी, उंजते नहीं। सुन के जद शब्द कन्ना तो थल्ले जाएगा ताई समाधि बनेगा, उंजते नहीं। ताई परम आनंद बनेगा, उंजते नहीं। हलक तो थल्ले भोजन दी बुरके नहीं जा रही, भुख नहीं मिटेगी, खून भी नहीं बनेगा। सुनना ही गहरा नहीं है, न समाधि न रस। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मित्र नूं सुनना आसान है, पुत्र नूं सुनना आसान है, मां बाप नूं भी मनुख सुन सकता है, पड़ोसी नूं भी सुन सकता है। गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। मनुख गुरुद्वारे भी आके गुरु नूं नहीं सुनता। मैं तो ऐसे इकट्ठ भी देखे ने, जे 1 घंटे वास्ते कोई आया भी है तो एक दूजे नूं सुनते रहे ने, गुरु नूं नहीं, गुरु नूं नहीं। गुरु नूं सुनना कोई खेल है बच्चियां दी, कठिन है। पुत्र जो कहता है तालमेल बैठ जाता है, मित्र जो कहता है तालमेल बैठ जाता है, मां बाप जो कहते ने तालमेल बैठ जाता है, गुरु जो कहता उते सिर दे उपरों लंघदा है। बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत उच्चा, बहुत उच्चा। इस वास्ते धर्म की सारी साधना सुनन ते खड़ी है। अगर कोई सुन लवे सदी भी खेड़ा उसनूं नसीब हो जाता है। उहदे पाप नाश हो जाते ने, उहदे दुख मिट जाते ने। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। दूजी पौड़ी दे सतगुरु दसदे ने, सुन के कैसी कैसी पदवी प्राप्त हो सकती है। सुनिए ईश्वर बरमा इंद। ईश्वर कहते ने शिव जी नूं। 33 करोड़ देवतियां नूं ते देव कहते ने, पर सनातन मत दे शिव जी नूं महादेव कहते ने। ये निरा देव नहीं, महादेव, देवतियां दा महादेव, तपीश्वर, जपेश्वर। हर कौम दे कुछ इस तरह के पुरुष होए ने, जैसे राम ते कृष्ण गृहस्थी ने। लेकिन सनातन मत दे कुछ ऐसा टोला पैदा होया, बैरागी ने, सन्यासी ने, त्यागी ने, गोशा तन्हाई दे रहने वाले ने। इसी तरीके दे नाल इस्लाम भावें मोहम्मद साहब गृहस्थी ने, और इस्लाम उन्होंने जन्म एक गृहस्थी ने दिता है, पर उन्हां च भी कुछ सूफी पैदा हो गए, त्यागी ने, बैरागी ने। सिख जगत भी गृहस्थियां का धर्म है। 10 गुरु साहिबान गृहस्थ धर्म दे विश्वास रखते और गृहस्थी। लेकिन गुरु नानक दे घराने च भी बाबा श्री चंद जैसे उदासी पैदा हो गया। हर वक्त उदास रहना, जगत तो निराश रहना। मैं जब कवि संतोख सिंह जी की रचना पढ़दा, 5 साल दे बाबा श्री चंद सन। कदी कदी ऐसा हो काफी देर तक जब घर दे च ना दिखाई देन,
ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੱਭੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਪਿਤਾ ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਵਕਤ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਿਆਗੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਧਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣੇ, ਉਹ ਰੂਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਉਦਾਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ। ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ, ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹੇਲੀ ਕੌਣ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚਲੀਏ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ। ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਬੀਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ, ਕਿਧਰੇ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਚੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਘ ਹੈ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਘ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਘ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਕਵਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਕਣ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਟ ਦੇ ਤਲੇ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਤਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਤ ਦੇ ਚ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ। ਕਬੀਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਜਾੜ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੈ ਜੈ ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ, ਕਉਤਕ ਠਾਏ ਠਾਏ, ਇਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ, ਉਜੜ ਮੇਰੇ ਭਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਲ इसदा मिलाप होया है, ते जिथे मिलाप होवे मेला ते उत्थे आउंदा है। वो ते सब उजड़े हुए ने, वो ते सब टुटे हुए ने। जिथे मनुख मनुख नालों टुटे होया है, सुरत शब्द नालों टुटी हुई है, ते जिथे टुटिया होया दी भीड़ होवे ते उजाड़ आउंदी है, ते जिथे जुड़िया होया एक भी बैठा होवे मिलाप हो गया होवे मेला ते उत्थे आउंदा इत्थे मेला है, बैठो मिलाप होया होया है, ये मिलिया होया है, ये मिलाप है। बड़ा कीमती श्लोक है भगत कबीर दा। कबीर जय जय हों फिरों कौतक ठाए ठाए, एक राम सने ही बाहरा उजड़ मेरे भाई। कहते ने हरी चंद नाम का एक कबीर पंथीआ भी सी, कबीर के इतिहास से चाहता इस तरह, वह भी नाल सी। अपने नाल दे साथियों नूं कहंदा किस पागल दे पल्ले पै गया, इन्ना सोहना मेला सी, कहंदा उजाड़ उजाड़। मैं फिर अर्ज करा, दरम्याने लोग उन्होंने बड़े बड़े विज्ञानकां नूं भी पागल आख्या, गलेलियो नूं वक्त तौर पर उन्होंने लोगों ने पागल कह दिता सी, बाकी भी पागल कह रहा है। किसी एक गल च उलझे रह जाते हैं, परिवार भी पागल कहता रहा, उन्हों दी पत्नियां भी कभी सहमत नहीं हुई, किसी एक कोई गल च उलझे रह जाते हैं। पर जिथे एक साइंटिस्ट पागल कहलाया, उथे संत महापागल कहलाया। यह भी मैं अर्ज कर दिया, महापागल किसी एक ही दुनिया च उलझे रह जाते हैं। पर कौन दसे, पागलों की भीड़ बड़ी वह ज्यादा है, तो ऐसे सियाने बहुत थोड़े ने, संत बहुत थोड़े ने, विज्ञानक तो बहुत थोड़े ने। तो बहुगिणती तो आम दुनियावी पागलों की है, और की है कि सियाणियां नूं पागल आखी जाते हैं। अजकल तो पागल खाने च लै जाते हैं पागलों का इलाज करने वास्ते, पर दिन दूर ने सियाणियां नूं बचाण वास्ते कोई घर बचाने बनाने पैणगे, क्योंकि सारी दुनिया पागल होंदी जा रही है, जमीन सारी पागलखाना बनती जा रही है। और गुरबाणी ऐसा कहती है, सब बौरे होंदे जा रहे हैं, सब दिमागी संतुलन गवांदे जा रहे हैं। सिर्फ उस दा ते सिर्फ है सीमा का फर्क है, थोड़े जिहे डिग्री का फर्क है। एक दो डिग्री अगे गए तो मनुख पूरा ही पागल। हालात ऐसे जगत दे होंदे जा रहे हैं। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अगर कोई सुने तो उस पदवी नूं प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर कोल सी, महादेव कोल सी। सुनिए ईश्वर, ईश्वर कौन? महादेव। ते महादेव कोल पदवी की सी, वो मैं गुरु ग्रंथ साहब तो ही तस्दीक करा। भट्ट कहते ने, गुरु अमरदास जी की उपमा करते हुए, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्हें जो गावे, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। हे गुरु अमरदास, जिथे तेरे गुण नहीं गिने जा सकते, पर हुण तस्बीह देनी है। रुदर ध्यान, शिव जी दे ध्यान नूं कौन नापे? रुदर शिव जी, इन्ना गहरा उसका ध्यान, इतनी गहरी उसकी समाधि। जुड़ गया तो 6-6 महीने पता ही नहीं किथे गया, जुड़ गया। ऐसी समाधि उसकी, ऐसी उसकी लीनता। तदी महाराज इसनों पहले पै रखते हैं इस पौड़ी दे। गहराई नाल कोई सुने, महादेव हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है, तपीश्वर। सुनिए ईश्वर बरमा। गहराई नाल अगर कोई परमात्मा दे नाम नूं सुने, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, बड़ी सूझ मिल जाती है। ब्रह्मा आयुर्वेद का जन्मदाता है, ब्रह्मा संगीत का जन्मदाता है। 7 सुरां ने, ऐसा उसने ब्रह्मे ने पहली दफा आख्या। जबान दे 6 रस ने, उसने ही पहली दफा आख्या। जूना इस जमीन दे 84 लख ने, ये सब तो पहले उसने ही गिनती की थी। किस आधार पर की, वो ही जाने।
लेकिन उसकी खोज ਨੂੰ ਅਜੇ तक झुठलाया नहीं जा सकिया। ग्रह नक्षत्रां दे बारे भी जो कुछ उसने कहा है वो अज भी सही है। उसे दे आधार ते बिरगू ने खोज की थी और उस जमाने च भी 1 साल पहले दस देंदे सन चंद्रमा नूं फलाने दिन फलाने समय ग्रहण लगेगा, सूरज नूं फलाने दिन फलाने समय ग्रहण लगेगा। कोई आले नहीं सन, कोई मशीना नहीं सन, कोई दूरबीना खुरदबीना नहीं सन, लेकिन उन्हां दी गणित विद्या बिल्कुल सही सी। जीवन दे बहु पक्ष दा ये ज्ञानी ब्रह्मा महाराज कहते अगर कोई सुने परमात्मा दे नाम नूं ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाएगा, महादेव जैसा योगी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और इंद्र जैसा ऐश्वर्य हो जाएगा। उसके कोल कहते ने स्वर्ग है, स्वर्ग दा सुख है। ते इंद्र दा मतलब है सारे इंद्रियां दे रस नूं जो बहुत गहराई नाल माणदा है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक मच्छी कोल जो जबान दा स्वाद है मनुख कोल नहीं है, उहदी सारी चेतना जबान ते रुकी है। कहते ने जो खाण दा महारस मच्छी कोल है, वड्डे तो वड्डे मनुख कोल भी नहीं, भावें 36 प्रकार दा भोजन खावे। जो रूप दा रस पतंगे कोल है, बड़े तो बड़े आशिक मिजाज मनुख कोल भी नहीं है। जो नाद दा रस हिरन दे कोल है, चोटी दे संगीतकार कोल भी नहीं है। और जो स्पर्शता दा रस हाथी कोल है, वड्डे तो वड्डे स्पर्श ज्ञानी कोल भी नहीं है। और सुगंध दा महक दा जो महा आनंद भौरे कोल है, आम मनुख कोल नहीं है। उसकी सारी चेतना नासका ते रुक गई है और उस सुगंध दे पिछे कुर्बान हो सकता है, पतंगा रूप दे पिछे कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, इतना लीन हो सकता है, क्योंकि इतना महारस आ रहा है उसनों वेख के ये जीवन बेमै नहीं है, कुर्बान किया जा सकता है। फुल्लां दी महक दे चों इतना रस आ रहा है, पंखड़ियां बंद हो रही हैं कमल दियां, विच ही बंद रह जाता है भौरा, कहता कोई गल नहीं, प्राण जाते ते जावे, सुगंध नहीं छोड़ सकता मैं, इस महक नूं नहीं छोड़ सकता मैं। महक दा जो महारस उस कोल है, आम बंदियां कोल नहीं है। कहते ने हर इंद्रे दा महारस इंद्र कोल सी, तदी उसका ना इंद्र पिया। वो वेख के जितना रस मान सकता सी, सुन के जितना रस मान सकता सी, चख के जितना रस मान सकता सी, सूंघ के जितना और स्पर्श करके जितना महारस मान सकता सी, आम बंदे उन्हां तो परे ने। इंद्र सुनन नाल इतनी गहराई नसीब हो जाती है, इंद्रियां दा रस वध जाता है। और मैं फिर अर्ज करा, एक भोजन की बुरकी दे एक संत जो स्वाद मान सकता है, आम मनुख नहीं। भरतरी ने उदयपुर के राजे नूं कहा सी, वैराग शतक दे च 2 शब्द ने, तू प्रसन्न व्यंजन बहु स्वादे, मैं प्रसीद सत्तू सा गा दे। ऐ राजन, 36 प्रकार का भोजन छक के भी तू रस नहीं मान सकता। भुख दे समय सत्तू घोल के जद मैं पी लेना, सत्तू जौ नूं भुन लेंदे ने ते फिर पीस के उसका आटा बना लेंदे ने। ये घोल के जो मैं सत्तू जो मैनू भिक्षा विच मिले ने, जद मैं पीना, ऐ राजन तेनू की पता है जबान दा रस की आउंदा है, इस महारस नूं मैं माणदा, तेनू की पता है। और राजा ते सोचेगा, ए सत्तू पिसे होया आटा जौ दा, और वह भी लूण कोई नहीं, मिठा कोई नहीं, पानी नाल घोल के खा रहा है। ते कहंदे 36 प्रकार का भोजन की है। गहराई नाल जद कोई परमात्मा का नाम सुनता है, इंद्रियां की शक्ति वध जाती है, इंद्रियां की गहराई भी वध जाती है, जबान का रस वध जाता है, नेत्रां का रस वध जाता है,
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਸ ਜੋ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਜੈਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜੈਸਾ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਧਿਆਨਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲ ਸੀ, ਈਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੁਣੀਏ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਕਲ, ਮੰਦ ਬੁੱਧ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੈੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ। ਕੀ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਚੀਆਂ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਗਿਆਨ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਮਕਾਈਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਦਿਨ, ਕਿਧਰੇ 4 ਦਿਨ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਦਿਨ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਦਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ 8.5-9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ
ऐसी फोन आई भी कारण की है, असी बार बार फोन किया है। तो हुण सारे शहरों का टाइम है वंडा ते साल 2 साल लगते हैं कि जिस ढंग नाल समा मंगते हैं। मैं करीबन 2 महीने इत्थे ते महीना कनेडा रहिंदा हुंदा। जिस दिन कनेडा ना गए फिर हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 10 इंग्लैंड रह जाता है, या नाल किसी होर यूरोप के देश जिन्हां दा प्यार है और मंग करते रहते ने। लेकिन इस जगह ते हमेशा करीबन 2 हफ्ते मैं हाजिरी भरदा रहा। कोई पुराना प्यार कुवैत दा सेठी साहब हुणां नाल, कोई बहुत पुरानी गल है। दास कुवैत आउंदा रहा 1 महीने लई, कदी 20 दिन, कदी 25 दिन, कदी 2 हफ्ते, कदी महीना। मैं उत्थे हाजिरी भरदा रहा। भावें गुरुद्वारा ते नहीं सी, पर एक मकान नूं किराए ते लैके गुरुद्वारा बना के, क्योंकि अरब देश गुरुद्वारा बनाने की इजाजत नहीं देंगे। और वाकई ऑफिशियली गुरुद्वारा किधरे भी नहीं है, कानूनी तौर पर किधरे भी गुरुद्वारा नहीं किसी भी अरब दे। सब नाजायज़ ढंग नाल यानी चोरी छुपे विचारियां ने बना के रखे हुए हैं। जे पता चल जाता है तो उतों दी हुकूमतां बंद कर देंदियां ने। पिछले दिन ही आबू धाबी का गुरुद्वारा बंद हो गया, उन्होंने बंद कर दिता। और दुबई दे भी 2 गुरुद्वारे, एक शारजा दा बंद होया, एक नाल होर सी वह भी बंद होया। खैर ये तो चलो उतों दियां सियासी जो है गल्लां। तो उस पुराने प्यार का सदका दास इत्थे कोई 2 हफ्ते हर साल हाजिरी भरदा रहा। नाल ब्रिज वाटर इन्हां दा भी गिला रहिंदा रहा भी कारण कि तुसीं सानूं 1 हफ्ता भी नहीं देंदे। पिछले साल जब मैं आया सी तो मैं बेनती की सी मैं थोड़ा हफ्ता रखांगे। तो ज्यों मैं आया तो सज्जन मित्र जिहड़े ने उस इलाके दे चंगे भजनीक ने आए, कहने लगे तुसीं वायदा कीता सी। मेरे दिल दिमाग ते एकदम बोझ पिया, क्योंकि दास ने वापस जाने का प्रोग्राम बनाया है 13 तरीक नूं। मजबूरी ते 3 दिन इधर फिडलफिया दिता सी। तो ये 2 दिन घटाने पे। मैं कहा इस तरह हुण तुसीं 2 दिन दी हाजिरी नाल अपनी तसल्ली कर लो ते बाकी इंज समझो अगर मेरी जिंदगी रही तो जिहड़ा मैं वायदा कीता सी कर्जा निभाड़ देंगा। अगले साल हफ्ता रह जावांगे। मैं इतनी तुसी जो है मैनू छूट दे दो, क्योंकि मेरे दिल दिमाग ते बोझ है। वाकई मैं पिछले साल कहा सी तुहानू हफ्ता देंगा। मैं आखिया मैनू याद है, मैनू भुलिया नहीं। उन्होंने कहा अच्छा थानू अगर इतनी मजबूरी है तो कोई नहीं, 2 दिन ठीक ने। इस कारण करके 2 दिन घटाए ने। थोड़े पड़ोस च ने ते उत्थों बेचारे रोज आंदे रहे ने, सवेरे भी आए सन। तो तुसी भी एक दिन जा सकते हो, ऐसी कोई गल नहीं है। और उत्थे भी 1-2 कीर्तनी जथे भी आए ने, बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। गुरुद्वारे सारे ही सांझे होंदे ने। बाबा तो साडा मक्के मदीने जाके तान छेड़ी उसने गुरबाणी दी। गुरुद्वारे आना ताई सफले दिल दिमाग विशाल होवे, समदृष्ट भी होवे ते विशाल भी होवे। तो ये थोड़ा जिहा प्रोग्राम जो इतवार तक इत्थे दास ने हाजिरी भरनी सी, शुक्रवार तक दास हाजिरी भरेगा। और मैं ये 2 महीने जिथे जिथे हाजिरी भरदा रहा, किधरे 2 दिन, किधरे 3 दिन, किधरे 4 दिन, किधरे 5 दिन। रिचमैंड वाले भी मैनू गिला करते रहे भी 5 तुसी हफ्ता कहा सी ते हफ्ते च भी 2 दिन घटा दिते। 2 दिन बोनी स्ट्रीट वाले ने मंग ले। मैं कहा तुसी आपस में फैसला कर लो। कहने तुसी साडे गल पा दिते है, इत्थे हफ्ता होना चाहिए सी। मैं कहा फिर अगले साल जिंदगी रही, पक्का नहीं जिंदगी रही ते वादा निभावांगे। तो इत्थे सिर्फ 2 दिन घटे ने। अगर ये 2 दिन भी कुछ संगतां नूं महसूस होया, बंदा कोई एक अद कहंदा हुंदा है ते अगले कह देन जी संगतां इंज कहंदियां ने संगतां। ये भी मेरा तजर्बा है। तो किधरे एक अद सज्जन नूं किधरे इस तरह की उखियाई भी होवे ते उसनूं मैं संगत च वायदा कर देना मेरी जिंदगी रही ते 2 दिन अगले साल वधा देंगे। होर कोई गल ऐसी नहीं है, इस तरह की नहीं है। महसूस करने की जो है गल नहीं है, क्योंकि ब्रिज वाटर दीयां संगतां मैं रोज देखदा रहा। 5-7 शरीर रोज उत्थों आंदे ने शाम दे वक्त।
ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। तो इस तरीके का यह प्रोग्राम है। इतवार वाले दिन सवेरे सेठी साहब ने भी अपने घर दीवान रखे हुए 7 तो लैके 10 बजे तक। पहले आसा दीवार का कीर्तन होना है 2 घंटे, 1 घंटा दास हाजरी भर के फिर 11:30 तो 12:30 इतवार वाले दिन हाजरी गुरुद्वारा ब्रिज वाटर दे जो है भरेगा। इतना इस वक्त प्रोग्राम सी। 3 दिन दास ने फिलडल्फिया हाजरी भर के फिर वापस चले जाना। इतना ही दास को समा हुंदा है। उम्मीद है आप शाम के समय होमो बाके आओगे। जपजी साहब दियां जितनियां बाकी पौड़ियां मेरे को हो गईयां, जितनियां गुरु बाबे ने कराइयां, क्योंकि मैं देखदा एक एक पौड़ी इतनी गहरी है, कई कई दिन मंगदी है। जे महाराज कहते ने सुनन नाल मनुख ईश्वर हो सकता है, महादेव हो सकता है, तो फिर महादेव कितों सुनता रहा? आप दी मैं ज्ञात लई अर्ज करा, ब्रह्मे कोल सुनता रहा है। कथा है ब्रह्मा कोल सुनता रहा है। ब्रह्मा कथावाचक सी। ब्रह्मा ते कथा करदा रह जांदा सी, इहदी सुनदियां सुनदियां समाधि लग जाती सी। इतना गहरा इसका ध्यान, इतनी गहरी इसकी दृष्टि। और कहंदे ने इसे ने पार्वती नूं आखिया सी अपनी पत्नी नूं, तू मेरे कोल अमर कथा सुन। ते अमर कथा ते नाम दी कथा हुंदी है, परमात्मा दी कथा हुंदी है। जिथे इसने सुनाई सी अमर कथा, उसनूं अमर गुफा कहंदे ने, कश्मीर दे च है। दास ने देखी है। 35 मील पैदल जाना पैंदा है। कोई 21,000 फुट की बुलंदी ते 12 महीने उत्थे बर्फ रहिंदी है। एक गुफा है, कुदरती गुफा है। और कहते इत्थे ही बैठ के उसने तप किया है। ये उत्तराखंड, ये बर्फानी हिमालय, पता नहीं क्यों ये साधुआं नूं, सन्यासुआं नूं, पांडुआं नूं, महादेव नूं, होर इस तरह के योगियां नूं चंगा लग्या। और दूर क्यों जाइए? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी अपना पिछला जन्म हेमकुंड नाल, हिमालय नाल ही जोड़ते हैं। मैं उत्थे बैठ के तप किया, मैं उत्थे बैठ के साधना की है। सियाणे पुरुष ते अज भी कहते हैं दुनिया च कितने पहाड़ ने, पर इस पहाड़ की अज भी अपनी महिमा है। वो जो जप किया है, वो जो तप किया है ऋषि मुनिया ने, उन्हां दियां हवावां, उन्हां दी वाइब्रेशन, उन्हां दियां लहरां अज भी इत्थे ने, प्रेरदियां ने, खिचदियां ने। और थोड़ा जिहा भी जप किया जाए तो थोड़े जिहा जप की भी मदद मिलती है। खैर, जिस गुरुद्वारे विच बहुता जप तप होवे, बहुता बाणी का पाठ होवे, यकीन जानो उत्थों की वाइब्रेशन भी कुछ होर हो जाती। बेचैन तो बेचैन मनुख भी गुरुद्वारे आवे, उहदी जबान तो वाहिगुरू निकल ही जाता है, उहदे मन नूं सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो अज इतनियां विचारां सुन के मनुख महादेव हो जाता है, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, इंद्र जैसा इंद्रियां दे रस की गहराई नूं छू लैंदा है। सुनदियां सुनदियां योग दियां युक्तियां की प्राप्ति हो जाती है। तन दे भेद का पता चल जाता है। ये तन कफ प्रधान है, पित्त प्रधान है कि वात प्रधान है। तन दे भेद का पता चल जाता है। सुनदियां ही सुनदियां सारा विकास नसीब हो जाता है, खेड़ा, क्योंकि पाप नाश हो जाते हैं, दुख नाश हो